Good morning, everyone. On behalf of DME Media School, I, Dr. Manasvi Maheshwari, Associate Professor, Media School, would like to extend a warm welcome to all the students and faculty members of Media School on 7th day of Session Orientation Program 2022. We have a special talk with our Dean, Dr. Amrish Saxena, today. Dr. Saxena is Dean of DME Media School, and additionally, he is Director International Relations and Director IQAC at DME. Dr. Amrish Saxena has over 4 decades experience as a media communicator, educationist, researcher, journalist, broadcaster, and development expert. He has worked on all media platforms, print, radio, television, film, and digital during 4 decades of his career. Dr. Saxena has published more than 20 research papers in journals and books. He has presented more than 50 papers in national international conferences. He has been associated with more than 20 universities in various capacities. He has visited China, Australia, United States, UAE, Egypt, Portugal, Spain, and France in pursuance of his academic interest. He has more than 50 books to his credit as a sole author, main author, chapter writer, editor, and co editor. He has been instrumental in building DME Media School a global name by initiating and organizing International Conference ICANN, International Film Festival SIFI. He is the ideator of Vibrant India series. He has collaborated with numerous institutes and universities worldwide for providing international exposure to our students through academic events and programs. I would request Dr. Saxena to address the students on the topic Competitive Spirits to Achieve High Performance. So, today is the last day of this SOP. For some of the students, this will be a repeat. But then there are so many things which are to be told, which are to be explained, which are to be understood. So from that perspective, any session which is happening at any point of time should be of use, as I believe, should be of use to everybody. And if we talk about media and particularly media industry, because everybody who is studying here in journalism and mass communication, whether the final year or the second year, ultimately they are destined to go to the industry to taking up different jobs. Now, whichever job you are landed at finally, the time of preparation is this only when you are in the college for 3 years. So whatever happened during the period of Corona, now that's a matter of the past. Things are happening in the physical space, so no such constraint is there wherein you are confined to your small windows and then doing that only you are learning. So you can learn anything now being in the physical space and coming to the college, attending the regular classes and all. Now, whatever is taught in the college or whatever happens in the classroom, any teaching and learning happens beyond that. Classrooms have their own importance, classroom teaching has its own importance, but then that is not, the learning is not limited to that only. And that applies to everybody whosoever is in that process of learning, the teachers as well as the students. So what is the first and the foremost thing which you need to learn? I will particularly talk about media industry and the practices in media industry, the prerequisites to join the media industry. I can even refer to whatever pitfalls are there in the industry, the shortcomings which are there, which in a way might be there in all the sectors. The same way the media sector also suffers from a lot of problems. But you need not to go into as to what is the dark side of the media industry. You need to learn what are the basic things which you need to understand if you want to make a career in media industry. So what is the first thing to make a career in media industry? Anybody who can tell us? No. What for the contacts are required? Anybody else? being aware, sir, skills. चलो स्किल्स ठीक है, अवेयर ठीक है, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा विच कम्स फर्स्ट विच कम्स सेकंड, बट ठीक है.
Both are accepted. And what else? The confidence. Not as such. Knowledge ठीक है, discipline no. I don't support contact. That is one. I must make it clear. What you said? Confidence is again no. And what you said? Discipline is again no. The communication skills. No. The art of storytelling. ये ऑफशूट्स हैं, कोर पे नहीं आ रहे. कोर इज दैट you have discipline to the extent that you have a control on yourself. Because normally डिसिप्लिन को अगर हम हिंदी में उसको कहते हैं तो वहाँ हिंदी अनुवाद तो बिल्कुल ठीक है, अनुशासन, जहाँ पे आप खुद अपने ऊपर शासन कर रहे हैं, मतलब आप अपने को नियंत्रित कर पा रहे हैं. जब कोई और आपको नियंत्रित करता है, आई एम नॉट विद दैट कॉन्सेप्ट. तो अनुशासन का नॉर्मली कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो कॉन्सेप्ट है कि देयर आर टीचर्स, देयर आर एडमिनिस्ट्रेटर्स हु आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ and who are disciplining yourself. So as a concept I don't agree with that. So but then as far as controlling oneself, I am with that concept, wherein you are able to control yourself, meaning thereby that what time you will be doing what, that you decide and you do. What time you will be going to the college, that you decide yourself and then you act accordingly. What time you are in the class, what time you are not, you decide that and then act accordingly. What time you devote for a study and then you are studying for that much time. That is the first thing that you need to learn. And one important thing that you should understand about media is all about deadlines. सारा नॉलेज, कॉन्फिडेंस सब बहुत बात की चीज़ें हैं. पहली और फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ डेडलाइंस. तुम लोगों का जितना भी एक्सपोजर होगा अभी तक मीडिया में वो तुम्हें पता होगा, बट देन यू वुड हैव नेवर हर्ड कि मॉर्निंग में जो बहुत सारे लोगों के घर पे अखबार आता होगा ना मॉर्निंग में, तुम लोग नहीं पढ़ते होगे, पेरेंट्स पढ़ते होंगे. कितने बजे आता है? ठीक है. कभी तुमने देखा कि अखबार वाला 9 बजे ला रहा है अखबार? क्यों? नौ बजे भी ला सकता है. कभी उसकी तबीयत ख़राब हो गई, कभी बारिश हो गई, कभी उसकी साइकिल ख़राब हो गई, बहुत सारी इवेंचुअलिटीज़ हो सकती हैं जो बहुत बार मेनली मतलब आदमी के कंट्रोल में नहीं होती कि नहीं होती. लेकिन अखबार 6 बजे आ जाता है. कई बार होगा आपको रात भर पानी बरस रहा है, सुबह 6 बजे आप देखेंगे अखबार आपके डोर स्टेप पे है. ऐसा कैसे होता है? कुछ भी हो सकता है लेकिन फिर भी आ जाता है टाइम पे. ऐसा कैसे होता है? That is a sense of commitment, sense of responsibility. Once you have that, everything is taken care of. जब वो है आपके पास, फिर कुछ नहीं, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं. जो अभी कहा डिसिप्लिन की जो बात थी, आपको मालूम है कि आपको 6 बजे ही देना है तो देना ही है, कुछ भी हो जाए देना. ठीक है. एंड देन देयर इज़ ए चेन. वो सिर्फ हॉकर की बात नहीं है, वो चाहे प्रलय भी आ जाए, तूफान भी आ जाए, अखबार को अगर रात में 1 बजे छपना है तो छपना है. मैंने तो अपने 40 साल के करीब में कभी नहीं देखा कि रात को 1 बजे छपने वाला अखबार 5 बजे छप रहा हो. 10 मिनट लेट हो जाएगा, 15 मिनट लेट हो जाएगा. एक की जगह एक 10 पे छपेगा, एक 15 पे छपेगा. मशीन की मेल फंक्शनिंग होगी, उसका कुछ रेमेडी होगी, दूसरी मशीन काम पे छपेगा टाइम पे ही. ठीक है. ये प्रिंट मीडिया का.
टेलीविज़न चैनल जितने लोग भी देखते होंगे, यू वुड हैव नेवर सीन कि किसी भी चैनल पे जो 8 बजे का बुलेटिन है वो अनाउंस करें कि आज 8 बजे नहीं दे पा रहे हैं, आज हम 8:30 बजे देंगे बुलेटिन। कभी किसी ने देखा ऐसा होते हुए? क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा तो नहीं है कि वो लोग वहाँ कोई इंसानी काम कर रहे हैं। रिपोर्टर है, एडिटर है, असाइनमेंट है, आउटपुट है, इनपुट है, इतना लंबा काम उनका हो रहा है, तो बुलेटिन टाइम पे क्यों आता है? ऐसा नहीं है मैकेनिकल फेलियर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि जो इंसान वहाँ काम कर रहे हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बुलेटिन टाइम पे क्यों आ जाता है? तो रन डाउन कहाँ से आता है? वो ऊपर से कोई भगवान तो आके उतर के आते नहीं ज़मीन पे कि रन डाउन बना दें। कौन करता है? कौन बोला? बोलो। मैं देख नहीं पाया, रन डाउन की बात किसने की? हाँ, तो कौन बनाता है? अगर तुम्हारी तरह के एम्प्लॉय होंगे 1 घंटे बाद पहुंचेंगे, हो गया रन डाउन उनका। फिर वो रनिंग इनसाइड होगा सभी, कोई यहाँ से वहाँ भाग रहा होगा, वहाँ से वहाँ भाग रहा होगा। सो द फर्स्ट थिंग which you need to learn, if any one of you interested in working in media industry, any job that you are doing, at any media platform you are working, from print to radio to digital, whatever, you have to follow the deadlines and you have to be on time. ठीक है, मैं सिर्फ इसी पे 2 घंटे आपको बता सकता हूँ, but I will not give much time to this. I think my point should be clear, whatever I said, that you have to have the deadlines, and it's a matter of habit. Once your habits are not on the track, you will suffer all your life. अभी जैसे 9:30 के क्लास में अगर 9:30 बजे नहीं आ सकते, तुम्हें लगता है कि इसमें व्हाट इज़ द बिग डील, 9:35 पे पहुंच जाएंगे, 9:40 पे पहुंच जाएंगे? कभी नहीं होगा। जब भी जाओगे ऑफिस में, पंचिंग लेट होगी, ठीक है, महीने में 15 दिन की सैलरी कटेगी, और 2 महीने के बाद यू विल बी शोन द डोर। किसी को नहीं चाहिए मीडिया में लेट कमर्स, पॉसिबल ही नहीं है, चैनल ही बैठ जाएगा। मतलब अनथिंकेबल है, लेट आना इज अनथिंकेबल। तो सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, क्योंकि सरकारी दफ्तर नहीं है। मीडिया इज ए कॉम्पिटिटिव वर्ड, जो हमने टॉपिक भी रखा है, कॉम्पिटिटिव स्पीड टू अचीव हाई परफॉर्मेंस। इट्स ए हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। Only those people will sustain in media who can stand in that competition. अगर 50 लोग काम कर रहे हैं, जो 10 लोग जो लेट आते हैं, फाइनली दे विल बी आउट। 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने हो, उनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि नो टेलीविज़न चैनल, नो न्यूज़पेपर, नो मीडिया प्लेटफॉर्म कैन अफोर्ड टू डिले इट्स वर्किंग। इट्स इम्पॉसिबल। Even हम तो छोटी छोटी एग्जाम्पल नहीं, even if you take big examples, take examples, you will, I can tell you, you just Google it and read about that. Just look at the American media. हमारे यहाँ तो उतनी नेचुरल कैलेमिटीज़ नहीं होती इंडिया में, जिस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं यूएस में, तो वो फॉर डेज टुगेदर people are reporting by standing underwater up to their shoulder, and for days together people work and the news channel is working. कुछ भी बंद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई घर निकला, घर के बाहर उसका वाटर लॉगिंग है तो कहे यहाँ तो 5 फीट पानी है, मैं तो ऑफिस आ ही नहीं सकता। इट नेवर हैपेंस। 5 फुट पानी हो, 10 फुट पानी हो, जर्नलिस्ट होगा, वो पहुँच जाएगा काम पे। कैसे पहुँचेगा उसको सोचना है। तो इट्स लाइक an essential in today's time, in 21st century, media is like an essential service. What are the other essential services besides media? बताओ। और हेल्थ केयर,
और क्या है? क्या एसेंशियल सर्विसेज हैं? एसेंशियल सर्विसेज है आपकी वाटर सप्लाई। कर्फ्यू लग जाए 2-2 महीने, वाटर सप्लाई इज नेवर डिसरप्टेड। लॉकडाउन हो गया, आप 2 महीने घर में बैठे हुए हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप 2 दिन पानी नहीं आएगा, पानी वाले भी लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं? तो जो वाटर वर्क्स में डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो अपने काम पे पहुंचेगा, नहीं तो आप तक पानी ही नहीं पहुंचेगा, आप प्यासे मर जाएंगे। बिजली वाला अपनी ड्यूटी पे पहुंचेगा, चाहे कर्फ्यू लगा हो, लॉकडाउन लगा हो, कोरोना हो गया हो, कुछ भी हो, वो अपने काम पे पहुंचेगा। इसी तरह से मीडिया इज एसेंशियल सर्विस। व्हाई मीडिया इज एसेंशियल सर्विस लाइक वाटर वर्क्स और द पावर वर्क्स डिपार्टमेंट्स? बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू इंफॉर्मेशन, and information dissemination is the most important thing in today's time. If there is no information dissemination, then what will happen? What will be the consequences? One, there will be rumors, there will be unauthentic information which will cause damage to the society. ठीक है, रूमर्स फैलेंगे, फेक न्यूज़ फैलेंगे, क्योंकि देयर विल बी नो ऑथेंटिक सोर्स अवेलेबल टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन। तो ये आज की बात नहीं है, ये आज से 25-30 साल 40 साल पहले भी था। ठीक है, टाइम बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, बट देन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड it is so important that even in the time when there used to be no internet in 1980s and 90s, that time it used to be the responsibility of those who were sitting in the administration to make sure that media is working smoothly, so that the information that even administrative officers are interested should reach to the people, that information reach. नहीं तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कर्फ्यू लगा दिया, लोगों तक कैसे पता लगेगा? या आज 2 घंटे कर्फ्यू लिफ्ट होना है, कैसे पता लगेगा लोगों की आज 4 से 6 तक लिफ्ट होगा? ओनली थ्रू द मीडिया। सो मीडिया is a very important instrument for carrying the information, for taking the information to the people. So it's so essential as there are essential things to live a life. And once you are working in this kind of industry, which is essential for society, then you have to be so much alert, you have to be so much on your toes, you have to be so much committed and responsible for the work that you have been assigned. So you are failing at the first step. 3 साल आपकी आदत हो गई 9:30 की जगह 10:30 बजे कॉलेज में आने की, फिर आप कुछ भी कर लें, कभी भी आप जब इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे कभी टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, आप चेंज ही नहीं कर पाएंगे अपनी हैबिट को। So it's not the question that you need to reach here at 9:30 or you need to attend a classes 9:30. The primary thing is that you are training yourself, doing your job within the deadlines as per the schedule time fixed. वो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये क्योंकि 9:30 तक हार्डली देयर वर 15-20 पीपल हु वर हियर। तो आप ये ट्रेनिंग का हिस्सा, इट्स नॉट दैट कि आप आए टाइम से, नहीं आए, लेट आए, नहीं आया, आपकी ट्रेनिंग ही डिफेक्टिव है एंड यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, स्पेंडिंग योर मनी, and then you are not getting the right kind of training. ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपको इतनी चीज़ों से। Now, what is the second thing after this? बहुत सारी चीज़ें आपने कही थी, क्या क्या कहा था? रिमाइंड दो मुझे, रिमाइंडर दो। और डिसिप्लिन तो मैंने बता दिया। डिसिप्लिन आप अपने को अपने तरीके ठीक कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे आपसे करने, कोई नहीं कहेगा आपसे कभी करने को। आप नौकरी में भी जाएंगे, आप नहीं करेंगे, बाहर हो जाएंगे। हाँ, स्किल, बट स्किल इज अगेन सेकेंडरी। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, I will trace from whatever
I was telling you just now. Since I told you that in media, whatever you are doing, ultimately you are in the job of information dissemination. किसी भी लेवल पे आप काम कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, मीडिया के अंदर आपका बेसिक काम है इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना. यही काम है ना. अब कौन सी इंफॉर्मेशन आप पहुंचाएंगे? द इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट. सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास है नहीं, ठीक है, तो आपको कलेक्ट करनी पड़ती है. जैसे मैं वही एग्जांपल अगर पुरानी लूँ जो मैं ले रहा था, अगर कर्फ्यू लगा हुआ है और 4 से 6 बजे तक कर्फ्यू लिफ्ट होना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको बताया ऑफिशियली, आपने वो इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पास ऑन कर दी, ठीक है. तो इसका मतलब होने को तो ये छोटी सी बात है, बट इट्स वेरी वाइटल इन द सेंस दैट यू आर प्रोवाइडिंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन टू द पीपल विच पीपल आर लुकिंग फॉर. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हुआ. दूसरा एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ communal rights happening, some law and order problem is there, or even we can take the corona examples. If there are some unusual situation is there is a lockdown. Now everybody's interest is in knowing where the hospital beds are available, where the oxygen cylinders are available. तो ये information कौन देगा लोगों को? It will be through the media. This means not only that you have to have the information which is to be spread, which is to be disseminated to the people. That information has to reach you. Reach you means you as information disseminator has to reach you through authentic sources. Otherwise, unknowingly, maybe unknowingly, you might be spreading wrong information. So, what is important here? That you collect information through authentic sources, and you have to be cautious, you have to be alert that you are not indulged into spreading wrong information. So, accuracy, authenticity of the information becomes important. तो मीडिया में काम करने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी. ठीक है, तो ये उसके बाद की बात. अब क्या है कि फर्दर, इफ़ आई गो फर्दर डाउन, टेकिंग दिस एग्जाम्पल forward. Now there are such kind of situations wherein you are collecting information, and on the same thing you are collecting information from different sources. Just one source will not help. So you must understand what could be those sources from where you can collect information. You should have access to those sources, right? And then once you have done that, you have collected information from 5 different sources on the same issue. Then what is your responsibility? You need to present that information to the people in a manner wherein that information is understandable. लोगों की समझ में आए जो आप बता रहे हैं उनको. इसके लिए आपको क्या करना है? You need to structure that information that you have collected. So your job as a media person is that 10 different things would have come to you. To put all that information at one place, compile that information, edit that information, structure that information, discard the irrelevant things from that, pick up the important points from there, and then put it in a format which is accepted in the industry and which is understandable to the people. ठीक है, आप बेकार की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे लोगों को. सो यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू डू दैट जॉब. कि कैसे करेंगे आप इस काम को? That is where the professional training is required. What for you are here? तुम कुछ भी कहीं भी BA कर लो जाके, क्या फ़र्क पड़ता है? But if you are here, this means during these 3 years, whatever subjects are being taught,
the ultimate objective is to provide you all such kind of training which I am talking about. यही ट्रेनिंग के लिए तुम लोग यहाँ पे हो. So you must appreciate this, that what for you are here, what kind of training is required. And obviously it is the primary responsibility of the institution and the teachers to provide you the kind of training which I am talking about, but you cannot be mere receivers कि मैंने कहा और बस तुमने सुन लिया. You should also be active partner in the whole process. You have to be active partner in the whole process. What does it mean? कि अगर हमने आपको कुछ बताया करने के लिए, then you should have a questionable mind. You should raise your points. That should convert into some kind of exchange, some interaction. Only then some learning would be possible. It can never be one-sided. So another thing which is expected from you during this process of learning, that you should be a stakeholder in the whole process of learning. ऐसा नहीं कि हमने कहा 9:30 बजे आना है तो 9:30 बजे आना है. तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए कि जब हम जाएंगे टाइम से तब हम कुछ सीखेंगे. So you have to be partners in the whole process. You have to be participatory approach. You have to be a participant in the whole process. Right? Once you are doing this all, whatever I told you till this time, if you are doing this all, only then you will start reaching towards knowledge. What is knowledge? बताओ, तुमने नॉलेज की बात की थी. Knowledge is all that information that you receive, that you analyze, that you filter, and then the essence of that information. सुबह से शाम तक तो 100 information आ रही हैं आपके पास, 1000 आ रही. Not everybody is there remaining with you. So final that gist of that information which remains with you, which you never forget, which is there all your life, that becomes part of your cognition. ठीक है, आपके ज्ञान का हिस्सा बन जाती है, नॉलेज का हिस्सा बन जाती है. And once this process is on, then it's a accumulation of this. आप दिन भर में 1000 चीज़ें आपके पास आई, एक चीज़ आपको काम की मिली जो आपके ब्रेन ने ले ली और स्टोर कर लिया उसको. अगले दिन फिर यही प्रोसेस हुआ, फिर नेक्स्ट डे यही प्रोसेस हुआ. एक एक दो चीज़ें जाती रहेंगी वहाँ पे. ठीक है, वो आपके हार्ड ड्राइव में इकट्ठी हो रही हैं. तो जब वो हार्ड ड्राइव में सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं आपकी, दैट इज़ योर नॉलेज. नॉलेज ऐसा नहीं मैंने अभी तुम्हें क्लास दिया और 1 घंटे बाद तुम नॉलेजेबल हो गए, ये ऐसा कोई तरीका नहीं. तो दिस इज लाइक वॉट एवर vital information retains by your brain, and then you use it whenever required. That is finally part of your knowledge, and that goes on, and this is something which is a process you have to take control of yourself. टीचर से नॉलेज नहीं मिलेगी आपको. You have to handle that yourself. टीचर आके ऐसा नहीं एक दिन क्लास में आया और 1 घंटा आपने कर लिया, तो आपको 4 दिन क्लास किया, फिर आपको लगा मैं तो 4 दिन से क्लास कर रहा हूँ, नॉलेजेबल हो गया. ऐसा कोई तरीका नहीं. Unless and until you yourself are involved into that process, you will never be able to acquire knowledge. So here the question arises whether you are into that process. तो आपको तो लगता है कि ज़बरदस्ती बुलाया है, मजबूरी है, अटेंडेंस है, जाना. कभी नॉलेज तो भूल ही जाओ.
बहुत अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपने आप पढ़ाई करनी पड़ेगी, विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट नाउ इट इज़, बिकॉज यू हैव टेकन बर्थ इन गूगल एज। बहुत आसान है, ये काम पहले मुश्किल था, क्योंकि टू हैव एक्सेस टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज ए ह्यूज टास्क टिल 1980s। आपको बुक्स ही नहीं मिलती थी, आपको वो लोग ही नहीं मिलते थे जहाँ से आपको कुछ पता लगेगा। अब तो अभी मैं कुछ कहूँगा एक क्लिक में मिल जाएगा आपको, तो अब तो आसान है, बट देन यू हैव टू यूज़ इट। So the technology is to your help, but if you are not using it, then you are not benefited, right? So here comes the knowledge. Knowledge शुरू में नहीं आ रही, जो शुरू में तुम लोगों ने बताया था, ठीक है? What else is left? और क्या क्या शुरू में तुम बताया था? The art of storytelling. ओके, नाउ आई कम टू स्किल, ठीक है, स्किल वाला पार्ट। हालांकि उससे पहले नॉलेज में एक चीज़ से रिलेटेड एक चीज़ और बताऊं, देन आई विल कम टू स्किल, देन आई विल कम टू प्रैक्टिस, ठीक है। अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क इन मीडिया एंड फॉर एनीबडी, दिस अप्लाइज ऑन एवरीबडी, उसमें जूनियर मोस्ट जो इंसान काम कर रहा है मीडिया सेटअप में उस पर भी लागू होती है, सीनियर मोस्ट आदमी पे भी लागू होती है। There are 4-5 prerequisites which you must have to do anything in the industry. One, you need to know your country, right? Two, you need to know your political system. यहाँ पे कोई ए पॉलिटिकल अप्रोच नहीं चलेगी। यू मे नॉट बी ए पॉलिटिशियन, यू मे नॉट बी एन एक्टिव पार्टनर इन पॉलिटिक्स, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ योर कंट्री मिनिमम। मैं अभी पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, कम से कम अपने देश। यू नीड टू नो द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री और द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ योर कंट्री, विच मीन्स कि रिजर्व बैंक से लेके और आपका रूपी की वैल्यू सब आ गया। You need to know the culture of your country. You need to know the heritage of your country. You need to know the issues of your society. You need to know, this is particularly Indian context, हालांकि सभी पे लागू होता है बाकी देशों में भी। You need to know your history vis-a-vis freedom struggle, if I put it in the Indian context. That is how all such things are there in your syllabus. नहीं तो मीडिया की पढ़ाई के लिए आपको क्यों फंडामेंटल राइट्स पढ़ाना, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना, क्यों इंडियन इकोनॉमी पढ़ाना, क्यों कल्चर के बारे में पढ़ाना, फिर तो सीधा मीडिया के बारे में ही पढ़ाएं। बट दिस इज द फाउंडेशन विदाउट विच you will not be able to do anything in media. And why this is necessary? This will not only give you an understanding about the functional aspect of the system, it will also give you the required sensibility to practice the profession, to practice media. आपके पास एक संवेदना का स्तर आएगा, आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि अगर ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया कि सरकार कर रही है, आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रही है, लोगों के ह्यूमन राइट्स अगर छीन रही तो गलत है। That is how you will think that this is something which is newsworthy, which should be reported and on which you need to write something. अब आपको ह्यूमन राइट की समझ ही नहीं है तो फिर आप लिखेंगे ही नहीं, कहें ठीक है हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस? जब आप आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, इसलिए फंडामेंटल राइट पढ़ाए जाते हैं ना, आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ पुलिस ने जो इस आदमी की पिटाई की वो गलत किया। नहीं तो आप क्या करेंगे, पुलिस के साथ खड़े होंगे कि बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने, पिटाई कर दी। तो जो हो रहा है विच इज़ हैपनिंग, पुलिस उठा के एनकाउंटर कर देती है, लोग सपोर्ट में फूल बरसाने लगते हैं। A wrong thing is happening, but then since you do not have the right kind of sensibility, then you support a wrong act. इसीलिए पढ़ाई की ज़रूरत है, इसीलिए 3 साल यहाँ पे हो कि तुम्हें समझ में आ जाए कि
Right to life is the first and the foremost thing that an individual has. And what is your job as a media person? To help a person in the protection of his right. As a media person, you are simply providing the necessary help, as we normally call it, media के बारे में, giving voice to voiceless. एक गरीब आदमी है जिसने संविधान नहीं पढ़ा, जिसने कानून नहीं पढ़ा, जो प्राइमरी स्कूल भी नहीं गया, ठीक है, और वो अपने राइट्स के बारे में जानता ही नहीं, प्रोटेक्ट करना तो बहुत बात की बात हो गई. Then it is the responsibility of a media person to provide help to that person in the protection of his right. तभी तो आप लिखते हैं स्टोरीज, नहीं क्यों लिखेंगे इस तरह की स्टोरीज? See, आपके पास वो समझ होनी चाहिए और वो जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए इतना सब पढ़ाया जाता है. विच यू फील के सब बेकार की चीज़ें कहाँ सुबह सुबह बुला के बोर करते रहते हैं. बट देन आफ्टर 5 or 10 years, when you will fail in your life, then you will understand what you have lost during these 3 years. ये तो सारा ट्रेनिंग का ही टाइम है. हाउ मच यू यूटिलाइज इट, दैट्स अप टू यू. ठीक है, तो ये नॉलेज वाला पार्ट हो गया. इसको आप नॉलेज के या जो भी कंटेंट के या थॉट के जिस भी लेवल पे आप इसको यू कॉल इट, अंडरस्टैंड दिस दैट वे, राइट. सेकेंड, you can put the skill. There is too much emphasis on skill. Skill is definitely important. There is no denial to that. Rather, I always say, whenever I speak on any topic anywhere, I always say that, and I believe in that, that media is all about technology. Right from 17th century to 21st century, in India and in the entire world, whatever has happened or whatever growth of media has happened, it has become a reality because of technology. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई वैसे वैसे मॉडर्न मीडिया की ग्रोथ हुई. जब हमारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप नहीं थी तो महीने में एक अखबार निकला करता था. जब और ग्रोथ हुई टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, तो वीकली न्यूज़पेपर्स निकले. जब और ग्रोथ हुई टेक्नोलॉजी में, डेली न्यूज़पेपर निकलने लगे. क्यों? क्योंकि वो ऐसी मशीनें आ गई जो बहुत कम समय में लाखों अखबार छाप सकती थी. देन डेली न्यूज़पेपर्स स्टार्टेड. बिफोर दैट देयर वर नो डेली न्यूज़पेपर्स. टेक्नोलॉजी के साथ ही मीडिया आगे बढ़ता है. जब रेडियो की टेक्नोलॉजी आ गई तो ट्रांजिस्टर्स और रेडियो आ गए, रेडियो चैनल्स आ गए. जब सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी आ गई तो टेलीविज़न आ गया. जब इंटरनेट की टेक्नोलॉजी हो गई तो आपकी जेब में सब कुछ आ गया. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. बट टेक्नोलॉजी, विच एवर टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी इज अ कैरियर है. आपके कंटेंट को आगे ले जा रहा है. आपने अपना एक YouTube प्रोग्राम बनाया और डाल दिया YouTube पे, ठीक है, तो आपने एक वीडियो बनाया, YouTube पे डाल दिया. तो टेक्नोलॉजी आपके पास है, YouTube है, YouTube पे डाल दिया, पहुंच गया लोगों तक. लेकिन उसमें बनाया क्या है, दैट विल रिमेन इम्पॉर्टेंट एंड दैट विल बी द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देन मेकिंग द वीडियो एंड देन पुटिंग इट ऑन YouTube. उसमें कंटेंट क्या है जो आपने जो वीडियो बनाया, वहाँ पे आपकी नॉलेज, वहाँ पे आपकी समझ, वहाँ पे आपकी संवेदना, वहाँ पे आपकी समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण, वहाँ पे ही है सारा कुछ. सो कंटेंट इन एनी केस विल बी मोर इम्पॉर्टेंट देन द कैरियर, देन द टेक्नोलॉजी. उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं और उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप ख़राब से ख़राब प्रोग्राम बना सकते हैं. टेक्नोलॉजी तो दोनों के पास है. जो अच्छा बना रहा है उसके पास भी, जो ख़राब बना रहा है उसके पास भी है. इंटरनेट तो सभी के पास है, कैमरा सभी के पास है मोबाइल में. लेकिन आप उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं. इसीलिए थॉट पहले आएगा, इसीलिए कंटेंट पहले आएगा, इसीलिए आपकी नॉलेज पहले आएगी, इसीलिए आपकी संवेदना पहले आएगी, फिर टेक्नोलॉजी आएगी. ठीक है. अब नाउ लर्निंग द स्किल. Learning the skill
is the easiest thing. And in internet age it's not difficult. जैसे कि अभी हुआ कोरोना पीरियड में, तुम लोगों के प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हो रहे थे, तो तुम में से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब से ही सीख ली बहुत सारी चीज़ें. इसका मतलब तुम्हें टीचर की कमी महसूस नहीं हुई, तुम्हें इंस्टीट्यूशन की कमी महसूस नहीं हुई. सो देयर वॉज ए सब्सटीट्यूट टू दैट. तो स्किल सीखना आसान है. आपको हर चीज़ के आपको लेसन्स अवेलेबल हैं. इंटरनेट पे जाइए, ढूंढ लीजिए. खाना बनाने से लेके कैमरा चलाने से लेके सब अवेलेबल है. उसके लिए कॉलेज भी आने की ज़रूरत नहीं है. कॉलेज आने की ज़रूरत क्यों है? जो उससे पहले वाली चीज़ें बताई थी. जब आप कॉलेज आएंगे, आप क्लास करेंगे. क्लास करने का मतलब अगेन मैं आई पुट इट डिफरेंटली, इसलिए नहीं कि क्लास करने के लिए आना है. जब आप आएंगे, क्लास में रहेंगे, टीचर से इंटरेक्शन करेंगे, अपने पीयर में इंटरेक्शन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कुछ और एक्टिविटी करेंगे, यू विल लर्न. और फिर आप रील भी बना देंगे रिज्यूमे की तरह, वो भी आप कर सकते हैं. फिर कोई टेंशन नहीं है. कहाँ गई? ठीक है. तो जब कोई एक्टिविटी हो रही, रील, वो घर में बैठ के तो रील बनाएगी नहीं, यहाँ बना सकते. तो आप टेक्नोलॉजी का, अपनी स्किल का भी इस्तेमाल कर लीजिए. ठीक है. या यूट्यूब पे इसके नितिन की तरह बनाएंगे, उसको क्या देख रहे हो? तो यही करेंगे ना. अब एक घर में खाली कमरे में घूम घूम के तो रोज एक ही वो बना नहीं देगा वीडियो. सो दैट इज हाउ यू हैव टू बी देयर. इट्स अ लर्निंग प्लेस. I mean, you are coming to the, you are blessed that way, that you have all these facilities in this country. 90% of people of your age are deprived of education. Either they cannot access education, or they cannot afford this kind of education that you people are getting. तो सिर्फ तुम 10% प्रिविलेज लोगों में हो इस देश के, जो हायर एजुकेशन में हो, और दैट टू यू आर स्टडीइंग दिस इन गुड इंस्टीट्यूशंस इन द नेशनल कैपिटल. ये अगर सिर्फ हम देखें कि जो नेशनल कैपिटल या अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, तो 10% लोग भी नहीं होंगे. 100 में से 4 या 5 लोगों के पास ही ये मौका होगा जो तुम्हारे पास है. मैं 10% 11% की जो फिगर है वो हायर एजुकेशन एनरोलमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ. एक्चुअल नंबर तो और कम है. तो तुम अपनी प्रिविलेज पोजीशन को वेस्ट कर रहे हो. देयर आर पीपल जो तुमसे बेटर हैं, तुमसे ज़्यादा ईगर हैं, तुमसे ज़्यादा उनकी जानने और सीखने की इच्छा है. उनके पास साधन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है कि वो इस एजुकेशन तक पहुंच पाएँ, और तुम पहुंच गए तो उसको वेस्ट कर रहे हो. So that's the tragedy of your life, which you, if you understand timely, then you can do some damage control even today. जिसके बाद 2 साल बाकी है, ज़्यादातर जो 3rd सेमेस्टर वालों के लिए सेशन था ये, और जिसके बाद 5th सेम में तो लो 1 साल बाकी है. अभी टाइम फिर भी है, फिर वो भी नहीं बचेगा. ठीक है. तो स्किल की इम्पोर्टेंस ये, स्किल ज़रूरी है, नो डाउट, हर एक को सीखनी चाहिए. बट देन आज के ज़माने में बच्चा जब पैदा होता है वो बिना सिखाए सीख लेता है बहुत सारी स्किल. ठीक है. जो एनी चाइल्ड विच इज़ टेकिंग बर्थ इन टुडेज टाइम, उसको नहीं बताना पड़ता है ये मोबाइल फ़ोन है, इसमें कैमरा है, वो अपने आप ही सीख जाता है. तो ये तो आई मीन इट हैज़ गुड और बैड पॉइंट्स, बट देन द थिंग इज़ दैट एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग द स्किल is not that difficult in today's time. The difficult thing is the first part which I said, and that is why there is a need of educational institutions. I do not know, maybe after 20 years or 30 years such kind of institutions are no more there. Maybe it happens. ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी. इस तरह की स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई हो सकता है बंद हो जाए, हो सकता है कॉलेजेस ही बंद हो जाए. बिकॉज द वे वी आर मूविंग, बहुत सारी चीज़ें जो हमें आज लगता है कि नहीं हो सकती, 20 साल बाद वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं. तो मे बी ये ट्रांजिशन का पीरियड है वेयर इन यू पीपल वुड हैव अंडरस्टूड. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि अब तो ये फ्यूटाइल ही हो गया,
क्या करना कॉलेज जाके? जब घर बैठ के हम कैमरा चलाना सीख सकते हैं तो कॉलेज क्यों जाना? बट देन नेक्स्ट कम्स, स्किल के बाद नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। चाहे आप स्किल के से अलग उसको समझें, चाहे स्किल के साथ रख के समझें। अब स्किल क्या है? आपने कैमरा चलाना प्रैक्टिस क्या है? कैमरा चलाना तो सीख लिया यूट्यूब लेसन से, जब तक शूट नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? ठीक है, तो उसके लिए यहाँ नैतिक की तरह खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, या अनन्या की तरह खड़ा होना पड़ेगा। तो बैठ गई तो ठीक है, वो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। सीखना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो स्किल तो आपने एक्वायर कर ली, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेटर होते जाएंगे। उसके लिए अगेन फिलहाल आज की तारीख में तो ज़रूरत है इंस्टीट्यूशन। जब नहीं होगी तो देखेंगे, तुम लोगों के बच्चों को ज़रूरत नहीं होगी तो ठीक है, लेकिन आज ज़रूरत है। तो डोंट अंडरमाइन दैट थिंग which many of you are doing, right? Now, as far as practice is concerned in the media industry, I give you examples from the industry also. Now, many of you have been doing internship in some news organizations, channels, newspapers. Still, maybe some of you are doing. What actually you do? वहाँ जाके क्या करते हो? कोई एक बताओ मुझे। इंटर्नशिप में गए तो वहाँ क्या किया? क्या सीखा, यही तो जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, और कोई कुछ बताएगा? की नहीं, इंटर्नशिप नहीं करी तुम लोगों ने? तो तुम मुँह लटका के क्यों बैठे हो फिर? तुम बताओ, शिक्षा कुछ बता रही थी तुम अभी। स्टार्टिंग में गए थे पहले तो उन्होंने टेस्ट किया कि हमें क्या क्या आता है, फिर उस बिहाफ पे उन्होंने काम असाइन किया। स्टार्टिंग में उन लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह रीड करने के लिए दिए, फिर उनको रीराइट करने के लिए दिया। एटलीस्ट 1 या 2 वीक तक उन्होंने रीराइटिंग ही कराई। फिर उन्होंने खुद से टॉपिक दिए, जैसे उन्होंने ऐसे टॉपिक दिए जो बहुत ज़्यादा हमें मना किए गए थे लिखने के लिए, जैसे धर्म के ऊपर लिखने के लिए कहा उन्होंने हमसे। फिर उन्होंने नहीं, किसने मना किए थे? मतलब बोलते हैं ना रिलीजन वगैरह पे नहीं लिखना है। क्यों, किसने कहा? हाँ चलो, ये कहाँ से आ गया? हाँ, और उसके बाद फिर हमें हमारा मेनली काम ये होता है, हमारा ऑनलाइन क्लास था, तो उसके लिए जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही होती है उस पर रिसर्च करके फिर हमें वो लिखना। ठीक है, और कोई बताएगा कुछ? फर्स्ट वीक में तो सर न्यूज़पेपर रीडिंग्स के लिए हमारे जो लर्निंग स्किल्स हैं उनको डेवलप किया। देन सर फिर सेकेंड वीक में फील्ड वर्क जो होता है उसमें सर जैसे उस वक्त पॉपुलर था कि ट्विन टावर का जो केस था, तो सर वहाँ फील्ड पे भेज के उन्होंने अपने सीनियर्स के साथ बताया कि कैसे रिपोर्टिंग होती है, और कैमरा हैंडलिंग भी बताई कि कैसे हैंडल होता है, और जो प्रोफेशनल काम होता है वो कैसे रन करता है। तो सर फील्ड वर्क के बाद उन्होंने जैसे शाम को रिपोर्ट लिखी जाती है, देन उसको सेंड किया जाता है, वो पूरी प्रोसेस बताई सेकेंड वीक में। देन सर फिर हमने छोटी छोटी न्यूज़ कवर करना स्टार्ट किया। ठीक है, चलो मैं इसको सम अप कर देता हूँ। मतलब जितने आंसर्स आए हैं मोर और लेस इन्हीं लाइंस पे होंगे जो लोग भी। नाउ दिस इज़ आइदर वी कॉल इट प्रैक्टिस, और a better term I can tell you so that you understand it in a better way. That's the functional aspect of media. Whichever, चाहे न्यूज़पेपर हो, टेलीविज़न चैनल हो, न्यूज़ पोर्टल हो, this is the functional aspect of media. How internal functions happen in a media organization. ठीक है, तो दिस इज पार्ट ऑफ मीडिया प्रैक्टिस। मतलब आप मीडिया प्रैक्टिस का मतलब आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में गए,
आपको पता है कि आपको इस डेस्क पे बिठा दिया गया तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, ये पढ़ना है, ये करके देना है, यहाँ पे है ये ग्राफिक्स का काम है तो ग्राफिक्स का काम करना है, यहाँ पे आपको कॉपी एडिट करना है तो कॉपी एडिट करना है। तो आपको जो काम असाइन हुआ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में वो आपने किया, 1 महीने 2 महीने सीख लिया, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर की चीज़ है। अगर आपने ये नहीं भी सीखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कभी इंटर्नशिप नहीं की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपनी पढ़ाई ठीक से कर ली, जब नौकरी मिली, पहले जब इंटर्नशिप्स नहीं होती थी तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती थी। तो इट्स लाइक है कि तुम्हें वो ऑन जॉब ट्रेनिंग थोड़ी पहले मिल जा रही है, क्योंकि इंटर्नशिप का हिस्सा है, ठीक है। जब मैंने करियर शुरू किया तो वो पढ़ाई होती ही नहीं थी सब्जेक्ट की, तो आपको नौकरी मिल गई, उन्होंने आपको 6 महीने के प्रोबेशन पर रख लिया और 6 महीने आपने काम सीखा, फिर आपको कंफर्म कर दिया। तो वो 6 महीने ही आपकी ट्रेनिंग होगी, वही पढ़ाई होगी, ठीक है। तो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट था जो अब इंटर्नशिप के तरह से है, बिकॉज नाउ इट हैज़ बीन पुट एज पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। तो वो तीसरे नंबर की चीज़ है। अब नाउ हो क्या रहा है, 1 2 3 में सारा उल्टा कर दिया है। तीसरा वाला पहले हो गया। एक बार इंटर्नशिप मिल गई तो फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, फिर इंटर्नशिप करते रहो, जो बहुत सारे लोग करते हैं। तो वो उल्टा कर दिया आपने, सिस्टम ही उल्टा कर दिया। तो वो उल्टा सिस्टम चलेगा नहीं, आपकी लर्निंग के लिए नहीं चलेगा। क्योंकि एक बार जब आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे एंड वंस यू टेक अप ए जॉब फॉर अनदर 30-40 years you will be doing job somewhere or the other. So for a thing which you will practice all your remaining life, you are eager and excited. And for a thing for which you have just one opportunity, that's during these 3 years to study, that you are ignoring. जो पहले नंबर की चीज़ है आप इग्नोर कर रहे हैं, जबकि वो पहली, ये आप लाइफ में 4 बार और ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, नौकरी आप 20 कर लेंगे। तो जो आप 20 बार करने वाले हैं उसके लिए तो आपका सारा कंसर्न है, और जो लाइफ में एक ही बार मिला है वो आप इग्नोर कर देते हैं। हाउ इरेशनल इज दिस? Either you don't understand this or nobody has ever told you that what's the importance of this. इसी तरह से जो सब दूसरे नंबर की चीज़ है वो भी पहले है, क्योंकि आप स्किल को पहले ले आते हैं तो क्या है, थॉट पीछे रह जाता है। आपको कैमरा चलाना आता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस कैमरे का इस्तेमाल करके मुझे स्टोरी क्या अच्छी करनी है, वो आइडिया ही नहीं है आपके पास। तो स्किल तो सीख ली, थॉट में रह गए, फिर क्या करेंगे आप? फिर वो कूड़ा वीडियो बना बना के डालते रहेंगे यूट्यूब पे, और चूंकि व्यूज़ आते रहेंगे तो आपको लगेगा आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। फिर आप गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे और 2 साल 4 साल निकलेगा, उसके बाद फिर आपको लगेगा कि अब तो मैं लाइफ में कहीं हुई नहीं, क्योंकि ख़राब कंटेंट की लाइफ बहुत कम होती है। इंटरनेट के एज में ख़राब से ख़राब कंटेंट की भी लाइफ है, उसके लिए भी स्पेस है। तो इंटरनेट ने चूँकि इक्वलाइज़र वाला काम किया है ना, तो जो उसका पॉजिटिव साइड अगर हम देखें और उसको उस ढंग से इंटरप्रेट करें तो इंटरनेट हैज़ डेमोक्रेटाइज द इंफॉर्मेशन। तो अब ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन किसी की बपौती है, सबके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, जनरेट करो जितनी इंफॉर्मेशन करना चाहते हो। तो वो उसकी पॉजिटिव साइड है, लेकिन उसकी निगेटिव साइड ये है, it has given a tool in the hands of the people who do not know how to make use of this tool. तो उसका मिसयूज हो रहा है। तो तुम्हारी जनरेशन में इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आई एम नॉट averse to that nobody should generate the content. If you have technology, make use of it, but prepare yourself before doing that. पहले पढ़ाई कर लो, कम से कम देश के बारे में जान लो, उसके बाद करो। जब स्विमिंग भी आप करना शुरू करते हैं तो कम से कम महीने 15 दिन का तो क्रैश कोर्स करेंगे ना, कि ऐसे कूद जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो थोड़ी उतनी पेशेंस, उतना टाइम चाहिए जहां अपने को तैयार कर लें। और कंटेंट इज़ इन एनी केस, चाहे जितनी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ आ जाए, चाहे दुनिया जितनी भी बदल जाए,
मीडिया में सिर्फ स्पेस उसके लिए है जो कंटेंट में रिच है। एक टेलीविज़न चैनल में या एक किसी भी न्यूज़पेपर में कहीं भी आप देख लीजिए, क्या आप उसको जानते हैं कि कौन सा अच्छा कैमरामैन किस चैनल में काम करता है? जबकि ऐसा नहीं कि कैमरामैन नहीं होंगे या अच्छे कैमरामैन नहीं होंगे, जो स्किल्ड नहीं होंगे, जो ऐसा नहीं है। क्या आप जानते हैं कौन सा अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता है? जबकि उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है कंटेंट जनरेशन में, सबका कंट्रीब्यूशन होता है, दिस अ होल टीम। आपको उसको ऊपर कौन जाता है? जो कंटेंट में अच्छा होता है। तो सारी चीज़ कंटेंट से शुरू होती है। कंटेंट के लिए यू हैव टू बी ए वेल रेड पर्सन, यू हैव टू बी ए नॉलेजेबल पर्सन, जो नॉलेज की बात तुम लोग कर रहे थे। यू हैव टू बी ए नॉलेजेबल पर्सन, यू हैव टू बी ए पर्सन who has time, energy and will to work beyond regular hours. सुन ली पूरा सेंटेंस? Who has time, energy and will to work beyond prescribed hours. नहीं तो आप नियम बताते रहेंगे, यार 8 घंटे हो गए, अब हम क्यों काम करें? मत करो। किसने कहा कि मीडिया में जाओ काम करने के लिए? दूसरे काम करो। पुलिसमैन का जॉब है, तू ठीक है, जो मैंने एसेंशियल सर्विस की बात की थी, तो इट्स लाइक ए पुलिसमैन्स जॉब। तो ऐसा थोड़ी पुलिस वाला घर जा रहा है, उसकी 8 घंटे की ड्यूटी हो गई, उसके सामने मर्डर हो रहा है, कह रहा है मैं तो अब घर जा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी खत्म होगी, जिसकी होगी देखेगा। तो क्या करोगे? पुलिस वाले को गाली दोगे कि उसके सामने हो रहा था, पुलिस वाला नहीं बोला। क्यों? क्योंकि यू एक्सपेक्ट कि वो ड्यूटी ख़त्म हो गई हो, वो हो सकता है दूसरे शहर में हो, उससे कोई मतलब नहीं हो, लेकिन पुलिस वाला था तो क्यों नहीं बोला? तो तुम ये कहो कि मैं तो आज तो मेरा ऑफ डे है, आज तो मैं सो रहा हूँ, आराम करूँगा, मैं नहीं करता काम। होगा, हो सकता है कोई इतनी बड़ी चीज़ हो गई हो वेयर इन योर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, तो आप कहें तो ऑफ डे, आज मैं क्यों आऊँ? हर ऑफ डे को बुला लेते हो, है ना? तो दिस मीन्स टेम्परामेंटली यू आर नॉट कट आउट फॉर मीडिया। दूसरा काम करो जो मैं कहता हूँ एसेंशियल। यू आर इन ए सर्विस इंडस्ट्री, आपकी जिम्मेदारी, एंड देन यू have to be socially inclined. You have to work with a sense of social responsibility. You will not be taking up a job 9 to 5. तो क्लर्क बन जाओ कहीं जाके, फिर मीडिया में करियर बनाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है अभी, बिकॉज यू आर डूइंग सिंपली द ग्रेजुएशन। तो एनीबडी हु फील्स अनफिट फॉर टेकिंग अप एनी जॉब इन मीडिया इंडस्ट्री, देन यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। ग्रेजुएशन के बाद जिस भी जॉब में जाना है चले जाओ। मीडिया में यू हैव टू, आई मीन व्हाई आई एम मेकिंग सो मच एफर्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मीडिया है क्या, मीडिया की पढ़ाई की क्या ज़रूरत है और किस तरह की पढ़ाई करनी है, और इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री में आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वेदर यू आर रेडी टू टेक इट अप और नॉट। अगर समझ में आ गया कि हाँ यू आर कट आउट फॉर दैट, यू शुड डू इट, यू कैन डू इट, देन प्रिपेयर योर सेल्फ वाइल यू आर हियर एंड मेक यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, make use of the teachers, make use of the, even peer learning is an important thing which we try to infuse in Spark. Somehow it's not happening the way it should happen. So it's a completely learning. if दुनिया में पूरी जो education में transformation आया है, if some of you know, I know or not, I am not sure, पूरी दुनिया में जो education बदली है, entire education including media education, हमारा जो सिस्टम है वो लर्निंग बेस्ड हो गया है ग्रेजुअली। लर्निंग बेस्ड का मतलब हुआ कि तुमने क्या सीखा, कितनी क्लास अटेंड की, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तुमने सीखा क्या, ठीक है। इट्स अ लर्निंग बेस्ड सिस्टम। हम जितने भी नए करिकुलम्स इंडिया में भी अब जो NEP में आ गया है या वेस्ट में भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, सब हम आउटकम बेस्ड सिस्टम्स बना रहे हैं, ठीक है। NEP का नाम सुना है ना सबने, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, सारा पहले से भी शुरू हो गया था, बट नाउ इट्स मोर प्रेसाइज दैट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स आउटपुट बेस्ड सिस्टम। तुम लोग 3 साल यहाँ रहे, हमने तुम्हें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, ये सब सिखाया, तो उसका नतीजा क्या निकला?
ये हम पहले कैलकुलेट करके तभी आगे तुम्हारे साथ काम करेंगे। क्या तुमने कैमरा सीख लिया, क्या तुमने लिखना सीख लिया, क्या तुमने बोलना सीख लिया, ठीक है, वो हम पहले डिसाइड करते हैं। अब जितना भी नया सिस्टम आ रहा है, अगर हमने 10 चीज़ें डिसाइड की कि ये होना चाहिए, 3 साल तुमने पढ़ाई की, 10 चीज़ें आनी चाहिए तुम्हें, और 3 साल के बाद हमने देखा कि तुम में 10 में से 2 ही आई या 3 आई या 10 नहीं आई, इसका मतलब कि जो सिस्टम हमने बनाया था वो फेल हो गया, उसने काम नहीं किया। उसके लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तुम भी, सभी लोग, बहुत लोगों का फॉल्ट हो सकता है, बट चला नहीं सिस्टम वो। तो अब आउटपुट ड्रिवन है, तो जब एट द एंड ऑफ इट, अभी प्रोसेस में हो सकता है 1-2 साल में पूरा ये हो जाए। हर सेमेस्टर के बाद हमें ये देखना पड़ेगा, तुमने अगर सिलेबस देखा हो तो उसमें ऊपर ही लिखा होता है, 3-4 पॉइंट लिखे होते हैं हर पेपर में, चेक करना कभी। तो अभी हम बहुत इन्फेंसी में हैं, चीज़ों को और कॉन्क्रेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। किसी का क्या, सपोज तुमने तीसरा सेमेस्टर पढ़ा, उसके बाद एट द एंड ऑफ इट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग सम असेसमेंट समथिंग कि 3rd सेमेस्टर के बाद तुम्हें लिखना आना चाहिए, तो फिर हमने देखा लिखना आया कि नहीं आया। तुम्हें बोलना आना चाहिए था, क्या तुम्हें बोलना आया। तो यहाँ से हम तय करेंगे कि हमने जो लर्निंग दी या जो तुम्हारी लर्निंग हुई वो फ्रूटफुल हुई या नहीं हुई। तो पता लगा मार्क्स तो 90% आ गए एग्ज़ाम में, और मैंने कहा कि 100 वर्ड्स ये लिख दो, उसमें 25 गलतियाँ कर दी, इसका मतलब लर्निंग नहीं हुई। तो जब लर्निंग हुई ही नहीं तो जॉब कौन देगा इंडस्ट्री में। जो नौकरी तुम्हें देगा वो तुम्हारे 80% मार्क्स पे कोई नौकरी नहीं देगा। अब तो मार्क्स वैसे ही ख़त्म हो गई उनकी अहमियत, तो सब जगह कंपटीशन बेस्ड, एडमिशन ही कंपटीशन बेस्ड हो गए। तो जब आप नौकरी के लिए जाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको एक टॉपिक दे देगा और कह देगा कि 200 वर्ड लिख के दिखा दो। तो तुम कहोगे मार्क्स मेरे 90% हैं, और फिर कॉपी में देखेगा कि गलतियां ही गलतियां हैं। फिर तुम शिकायत करोगे कॉलेज ने तो जॉब ही नहीं दिलाया। कॉलेज क्या करेगा, काम तो तुम्हें करना है। हम तो तुम्हारी लर्निंग पे काम कर रहे हैं, तुमने उस टाइम को वेस्ट कर दिया, कॉलेज ही नहीं है। कभी कुछ लिख के टीचर को दिखाया नहीं, कभी टीचर से पूछा नहीं कि हम इसको राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें। तो मीडिया में कैसे काम मिलेगा। मीडिया इज़ कम्प्लीटली ए परफॉर्मेंस बेस्ड इंडस्ट्री। जब आप किसी सिंगर को सुनते हैं, ठीक है, सभी लोग गाना सुनते हैं, किसी सिंगर को सुनते हैं, तो क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि उस सिंगर की क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। तो उसने बीए किया है कि एमए किया है कि पीएचडी की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है कि नहीं की है। अब वो अच्छा गाता है, आपको पसंद है। सेम इज़ विद मीडिया। अगर आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आपने एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखी है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, जब आपने, मैं एज ए रीडर वो न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि जिस आदमी ने लिखी है वो कितना पढ़ा लिखा है। अच्छा लिखा है तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लिखा है, ख़राब लिखा है तो ख़राब लिखूँगा, भले ही वो आके कह रहे मैं तो पीएचडी हूँ, मेरी रिपोर्ट कैसे ख़राब हो गई, लेकिन मुझे नहीं पसंद आई, ख़राब लिखी है। So it's a performance based industry. If you are working in the media industry, your performance is being judged every now and then by thousands of people. You have agreed to open yourself to outside judgment. जो सुन रहा है आपको वो जजमेंट, आप बहुत अपने को सोचते हैं मैं बहुत अच्छी एंकरिंग करता हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं उनको किसी को पसंद ही नहीं आती। तो नहीं पसंद आएगी, चैनल आपको तब तक रखेगा जब तक लोगों को आपकी एंकरिंग पसंद आ रही है। जब उसे पता लगेगा कि लोगों को पसंद नहीं आती है, वो बाहर कर देगा, दूसरे को ले आएगा। टोटल परफॉर्मेंस बेस्ड है, जैसे आपको फिल्म इंडस्ट्री में होता है, बिल्कुल अब वही। इंटरनेट आने के बाद तो 100% वही हो गया। जिस चेहरे को लोग देखना चाहते हैं उसी एक्टर को काम मिलता है। जो क्राउड पुलर होता है कि उसके नाम पे फिल्म चली जाती है, तो वैसे ही न्यूज़ एंकरिंग में जो जिसका चेहरा बिकता है उसको नौकरी मिलती है, सैलरी मिलती है। तो इट्स कम्प्लीटली परफॉर्मेंस बेस्ड। जिसको बढ़िया, जो नॉलेजेबल, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो अपनी नॉलेज पर टिके हुए हैं, वो इतनी नॉलेज है कि कोई सोच ही नहीं सकता। उनको रखते हैं, सारे चैनल रखते हैं, सारे न्यूज़पेपर रखते हैं, बड़ी बड़ी सैलरीज पे रखते हैं, कि उन्हें चाहिए नॉलेजेबल लोग।
तो आपके पास नॉलेज है तो आपको काम मिलेगा, आपको अच्छा लिखना आता है मिलेगा, अच्छा बोलना आता है तो मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी और आपको हमेशा मिलेगी और आपकी मार्केट वैल्यू रहेगी। एक नौकरी के साथ 4 लोग आपके ऊपर निगाह लगाए होंगे कि यार इसको तोड़ लें तो बहुत बढ़िया है। तो मीडिया इंडस्ट्री में स्काई इज द लिमिट, देयर इज नो स्ट्रक्चर्स, सो दैट इज व्हाई देयर आर सम वेरी गुड थिंग्स, सम बैड थिंग्स इन द सेंस कि आई मीन इन द लॉन्ग रन नौकरी के तरीके से ऑब्वियसली ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है, बट देन इफ यू नो योर जॉब दैट देयर इज नो डर्ट ऑफ वर्क। सो ट्राई टू डेवलप दोज काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज। सिर्फ बेसिक लर्निंग की बात नहीं है। व्हेन यू विल जॉइन द इंडस्ट्री you must be, even before that, even at this stage, you should always try to do this introspection. क्या इंट्रोस्पेक्शन करना है? आज ही से शुरू कर देना। Always try to find answer yourself कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो किसी के पास नहीं है। उसी के आधार पे तुम्हारी प्राइस तय हो जाएगी। एक नौकरी के लिए 50 लोग गए, आप जाके बताइए कि मुझे ये आता है, और आपको पता है कि मैं जो ये बता रहा हूं मुझे आता है, ये किसी को नहीं आता, यू विल बी हायर्ड, क्योंकि आपके पास वो है जो बाकी 50 के पास है ही नहीं। तो आपको अपनी मार्केट प्राइस खुद ही तय करनी पड़ती है। अगर आप जॉब सीकर हैं तो फिर मीडिया आपके लिए नहीं। अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बाकी लोग सोच ही नहीं सकते, बाकी लोग कर ही नहीं सकते, देन मीडिया इज फॉर यू। इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड, वेरी डिफरेंट प्रोफेशन। आप इतना अच्छा लिखें कि कोई उसके आसपास ही ना आ पाए, आपके घर बुला के आपको लोग ले जाएंगे, नौकरी दे देंगे, क्योंकि देयर इज ए सीरियस डर्थ of talented people in media industry today. Thousands of students are passing out every year with a undergraduate or postgraduate degree, but quality is a casualty. है ही नहीं, लोग ही नहीं। अच्छे लोगों के लिए इतने जॉब्स हैं एंड जो जॉब देने वाले हैं वो ढूंढते रहते हैं, लोग नहीं मिलते। अच्छा लिखने वाले ही नहीं है। मैं तो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो बहुत सीनियर पोजीशंस पे थे, कीप आस्किंग मी कि भेज दो, मैं जिसको भेजता हूँ वो रिजेक्ट होते हैं, लिखने ही नहीं आता किसी को। किसी में को अगर इंडस्ट्री में आगे चल के कुछ बड़ा करना है, पहला काम कर लो, लिखना सीख लो, जॉब्स ही जॉब्स होंगे। एडिटिंग सीख लो, एडिटिंग, कॉपी एडिटिंग है ही नहीं, इंस्टीट्यूशन ही ख़त्म हो गया, है ही नहीं। बताओ एडिटिंग, क्योंकि वो इंटरनेट का फॉल आउट है, सब कुछ तो इंटरनेट कर देता है, तो आपको फिर सीखने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। इंटरनेट इज़ ए डबल एजेड थिंग, इट्स अ बून, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली इट विल हार्म यू, बिकॉज आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आपको अपने से तो कुछ सीखना ही नहीं है, वो गूगल से ही पता कर लेना है हर समय, तो आपको पता तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी जो करंट अफेयर्स वगैरह की किसने बात की थी, करंट अफेयर्स का ये कि मीडिया जो मैंने कहा वो उसको मैं एड्रेस कर लूँ, जितनी भी बात हुई करंट अफेयर्स का, तो ये कि जितनी भी चीज़ें मीडिया में आज हो रही हैं जो वही करंट अफेयर्स है, वो आपको पता होना चाहिए। आज आप नौकरी के लिए कहीं जाएंगे, चाहे आप कंटेंट राइटिंग के जैसी चीज़ के लिए जाएं, चाहे आप रिपोर्टिंग के लिए जाएं, चाहे चैनल में जाएं, चाहे न्यूज़ पोर्टल में जाएं, वो आपसे सीधा पूछ लेगा। जैसे अगर मेरे पास, मुझे हायरिंग करनी है और तुम में से कोई भी आएगा, आज की तारीख में मैं पहला सवाल उससे करूँगा कि रशिया यूक्रेन के कौन से वो एरिया हैं जहाँ पर रशिया ने जिनको ऑक्यूपाई किया है और रेफरेंडम करा रहा है, नेम दोज प्लेसेस।
तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि ऐसा हो रहा है। कितने लोगों को पता है कि ऐसा हो रहा है? कितने ऐसे एरियाज हैं, चलो नाम मत बताओ, कितना एरिया ऐसा है जिसको एनेक्स कर रहा है रशिया? क्या यूक्रेन के बॉर्डर कितने देशों से लगते हैं? चलो ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया, इससे पता लग रहा है कि तुम लोग वेयर डू यू स्टैंड। एंड एट ए टाइम जबकि यूक्रेन वॉर में इतना इस बार कंपटीशन हुआ, दिस जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे और 50 एग्जाम्पल हो सकती हैं जहाँ पर अब वॉर रिपोर्टिंग हैज़ एंटर्ड इनटू ए डिफरेंट जोन। पहले इतनी वॉर रिपोर्टिंग नहीं होती थी। पहली वॉर रिपोर्टिंग कब हुई लाइव वर्ल्ड में? वॉर रिपोर्टिंग की लाइव वॉर रिपोर्टिंग की शुरुआत कब हुई? लाइव रिपोर्टिंग हो जाएगी यार, कमाल ही करते हो। फर्स्ट गल्फ वॉर, CNN डिड इट। तो तुमको कौन नौकरी देगा? भगा देगा कि यार टाइम वेस्ट करने क्यों आ गए यहाँ पे, तुम्हें जब नहीं कुछ पता। फिर कहोगे कॉलेज नौकरी दिलवाएगा, कॉलेज क्या कर लेगा इसमें जब पढ़ोगे ही नहीं। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा पढ़ने लिखने का एप्टीट्यूड, ये मैं अभी 100 और एग्जाम्पल दे दूंगा एंड आई नो मैं अगर 100 चीज़ें पूछूंगा तो तुम्हें शायद इक्का दुक्का ही पता होंगी, नहीं पता होगी, जबकि मैं वही चीज़ें पूछूंगा जो करंट अफेयर्स की जो हो रहा है। रूपी का अभी विज़ डॉलर क्या रेट है? कल क्या था? ठीक है, तो इसको मिल जाएगी नौकरी। नहीं, कैसे मिलेगी? कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा पिछले 1 महीने में कम हो गया? फॉरेक्स कितना कम हो गया? कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल करने का लास्ट डेट क्या है? बताओ, करंट अफेयर्स। हाँ, किसने बोला आज? क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन। हाँ, एक भी समझदार आदमी मिले तो लगता है चलो हमें मेहनत करने का कुछ तो फ़ायदा है। कौन कौन लोग कर रहे हैं पॉसिबल लोग? शशि थरूर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से MP है? केरल तो स्टेट है। क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। खैर चलो, तो ठीक है, अगर आप बताओ, अच्छी ये तो बात है कि कम से कम इतनी सारी चीज़ें पता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा बड़ा फैसला किया? ये तो अच्छे स्टूडेंट है भाई, मैं बेकारी एंटी एस्टिमेट कर रहा था। अच्छा, एबॉर्शन का जो फैसला आया है, क्या है फैसला? Unmarried women till the age of 24 are allowed to abort. तो ऐसे लोगों को तो उनको जो सब पढ़ते लिखते हैं, इसका मतलब तो पढ़ते हो तुम लोग रेगुलर? अच्छी बात है, आई एम रियली हैप्पी अगर ये है। अच्छा, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है जो फैसला आया है? इसका इम्प्लीकेशंस क्या है? अब क्या मतलब इसका फॉल आउट कहाँ पे होने वाला है? Sir, follows the married women, married. ये तो हो गया, इसके बाद सर इसमें भी डिबेट हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, डिबेट हो सकती का नहीं, अगर मैं पूछ रहा हूँ तो देयर इज समथिंग स्पेसिफिक। सर इट्स डिबेट अबाउट कि इफ द मैरिड वुमन डजंट हैव द राइट टू अबॉर्ट अ चाइल्ड और नॉट। ये तो हो ही गया, फैसले में ही आ गया। सर नहीं, अनमैरिड वुमन, अनमैरिड पे ही तो फैसला आया है। लेकिन मैरिड वुमन को अलाउड क्यों नहीं किया? इस पे भी एक नहीं, अबॉर्शन तो इंडिया में तो अलाउड है।
जो अभी लीगली किया वो 24 तक ही किया। हाँ 24 वाले पे डिबेट थी, बट अदरवाइज तो अबॉर्शन अलाउड है, इंडिया में अलाउड है। अब यूरोप में प्रॉब्लम फिर से रिवर्स चल रही है, यूएस में प्रॉब्लम चल रही है फिर से, बट इंडिया में तो अलाउड, पहले नहीं था, अब अलाउड है। अब इसका जो फॉलो आउट है, देयर इज अनदर पिटीशन विच इज़ पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ ऑन मैरिटल रेप। तो अब जो नेक्स्ट इसका असर दिखाई देगा वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मैरिटल रेप पे आएगा उसमें, ठीक है, विच इज़ रिपोर्टेड, आज पढ़ लो, सारा है अखबारों में, ठीक है। तो आई फिनिश विद दिस। पिछले 5 दिनों में 7 सेशंस हुए और लगभग वीडियो एडिटिंग पे, रेडियो से, प्रोडक्शन के ऊपर भी, टेलीविज़न के ऊपर भी जो बातें जो एक्सपर्ट्स आए, सबकी बातों में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन थी। ऑल्दो सर न्यूज़ की बात कर रहे हैं या फिर मीडिया की बात करते हैं, तो आई वांट टू क्लैरिफाई, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मीडिया वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूज़ एंड नॉन न्यूज़ सेगमेंट बोथ। आप लोगों ने देखा, आपको एग्जाम्पल हर इंडस्ट्री से मिले। रेडियो की भी बात करें तो करंट अफेयर्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, वहाँ पे भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी रिपोर्टिंग की फील्ड में है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू बी इन मीडिया इंडस्ट्री एंड यू वांट टू स्टे लॉन्ग, अगर आप लंबी पारी खेलने आए हैं तो आप चाहे एडवर्टाइजिंग में जाएं, पीआर में जाएं, रेडियो में जाएं, कंटेंट इज़ द किंग। ये बहुत ही कॉमन फ्रेज़ है। एंड लाइक सर सेड कि हम डिजिटल पे वीडियो बना लेंगे, उसमें व्यूज़ आ जाएंगे, बट वो लॉन्ग टर्म स्टे नहीं करेगा। लंबे तौर पर, लंबे ड्यूरेशन तक यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ऑन दैट काइंड ऑफ कंटेंट। सो इफ़ यू रियली वांट टू कीप इट समथिंग जहाँ पे आपके नाम बने या आपका एक करियर बने। जब हम करियर की बात करते हैं तो हम 5 सालों या 4 सालों की नौकरी की बात नहीं करते हैं। यू पीपल माइट हैव डन इंटर्नशिप एंड सीन पीपल, आपसे जो 2-4 साल सीनियर होंगे या आपसे जो जूनियर होंगे, आपके बैचमेट्स। बट वी हैव बीन इन टीचिंग फॉर, लाइक आई हैव बीन इन टीचिंग फॉर मोर देन अ डिकेड। मैंने 10-12 साल स्टूडेंट्स को पास आउट होते देखा है, काम करते देखा है। अगर आप 50 मीडिया के लोगों को जानते होंगे तो हम 100 को जानते हैं, सर उनसे भी ज़्यादा को जानते हैं। सो वट एवर वी हैव बीन शेयरिंग बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस इज समथिंग रियली सीरियस. I just hope this session orientation program will help you understand the gravity of issues which we are pertaining with the young generation who is entering journalism, media and mass communication. What is expected from you is really important. Language, diction, content, clarity of thought, of course hard work and commitment. So with this note, I would suggest and I just hope that after this session आप लोगों के अंदर ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच आएगी काम करने की, एंड द कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है, हो जाएगा, या नौकरी मिलने तक के लिए नहीं सोचोगे, एक लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग करोगे जो 5 ईयर प्लानिंग होती है, 10 ईयर प्लानिंग होती है. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स. तो वो इसीलिए पूछा जाता है कि उस समय नौकरी लेने के लिए अच्छी बात करके नौकरी मिल जरूर जाएगी, लेकिन आपका विजन कितना है. And that vision will only come when you have actual, you understand the industry and you understand the market. So with this note, thank you so much. Thank you for being so patient, and we'll see you next year with more sessions and another edition of session orientation program. Thank you so much.